Hello students, today we are going to start our next topic. This is about rocks. The earth crust is composed of rocks. ये किसकी formation से बना हुआ है जो earth का crust part है? This is composed with rocks. A rock is an aggregate of one or more minerals. इसमें एक या एक से ज़्यादा minerals consist होते हैं. Petrologist. Who is petrologist? Petrologist scientist who study about the rocks. यानी कि those scientists who study about the rocks are called petrologists. Next है हमारे पास petrology. What is petrology? It is the science of rocks. rocks के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी. और जो इनको स्टडीज करते हैं साइंटिस्ट उनको बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट. लिथोस्फीयर, outer crust of the earth, it has average thickness of about 100 किलोमीटर. इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर. Its literal meaning is the sphere of rocks. इसका जो literal meaning है वो क्या है? The sphere of rocks down to a depth of 16 kilometer from surface of land. 95% of the earth minerals consist of rocks. Materials consist of rocks. यानी कि 16 किलोमीटर से गहराई पे जाने के बाद जो भी मटेरियल्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन में बने हुए हैं? रॉक्स की फॉर्मेशन में बने. Rocks may simply defined as all those materials which form the crust of the earth, whether hard like granite or soft like clay, gravel or sandstone. It means जो rocks हैं वो hard भी हो सकते हैं ग्रेनाइट की तरह एंड क्ले सैंडस्टोन की तरह सॉफ्ट फॉर्मेशन में भी हो सकती हैं. Now we are doing the classification of rocks, यानी कि rocks का वर्गीकरण. Rocks are generally recognized on the basis of their formation, यानी कि उनकी बनावट के आधार पर, उनकी फॉर्मेशन के आधार पर rocks को क्लासिफाई किया जाता है. How many types में? 3 types में. First is igneous rocks, second is sedimentary rocks and third one is metamorphic rocks. आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें and रूपांतरित चट्टानें. Igneous rocks. It is derived from a Latin word ignis. Its meaning is fire. यानी कि इसका मीनिंग क्या है? आग. Igneous rocks are formed through the solidification of magma and lava. वोल्केनोस जब ब्रस्ट होता है तो उसमें से क्या निकलता है? मैग्मा या लावा. और जब वो स्प्रेड हो जाता है अर्थ सरफेस पे और हार्ड शेप में सॉलिड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज formed in the igneous rocks. Magma and lava move towards the surface through cracks and joints from a depth of 60 to 100 kilometers. It means जब volcanoes ऊपर की तरफ ब्रस्ट होता है, किसकी तरह होता है? क्रैक्स में से. It means यहाँ पे लावा है और वो अर्थ की तरफ, ब्रस्ट की तरफ आएगा तो कहां से आएगा? जहां से भी उसको रास्ता मिलेगा, यानी कि क्रैक्स के थ्रू, दरारों में से. कहां पे आएगा? अर्थ सरफेस पे. नेक्स्ट इज igneous rocks are known as parent rocks. Which rocks are known as parent rocks? This is igneous rocks. Yeah, otherwise we can say that other name of igneous rock is blank. Then you have to write parent rocks. Primary rocks also its name because all other rocks are derived from the igneous rocks. Why igneous rocks are known as primary rocks? Because other rocks are derived from igneous rocks. Next है classification of igneous rocks. इसका जो क्लासिफिकेशन है, they classified on the basis of chemical composition and texture. जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेसिस पे किया गया है? On the basis of chemical composition. It means कौन कौन सी केमिकल उसके अंदर कंटेंट होते हैं and their texture. So next यहाँ पे given है on the basis of chemical composition. Chemical composition के अकॉर्डिंग जो igneous rocks हैं, this is 2 types. First is mafic, second is felsic. These rocks contain ferromagnesium mineral which is characterized by the abundance of iron and
magnesium. Felsic. These rocks mainly contain feldspar. इसमें mainly कौन सी कंटेंट होते हैं? feldspar. It consists of silicate of aluminium in combination with those of sodium, calcium and potassium. It means chemically these elements are compounded, यानी कि वो किस फॉर्मेशन में है? टुगेदर फॉर्मेशन में है. That's why these two types of rocks fall. Next यहाँ पे given है classification based on texture. Texture के अकॉर्डिंग जो classification given है, it refers to the size and patterns of the mineral. यानी कि उनके size के अकॉर्डिंग और उनका जो पैटर्न है किस तरीके से कंसिस्ट होते हैं. Crystals present in them. जो minerals के जो पैटर्न है, पैटर्न किसके अकॉर्डिंग होगी? जिसमें उसमें minerals के crystals किस तरीके से वो अरेंज होते हैं. The size of mineral crystal in an igneous rock depends upon the rate of cooling of magma. It means magma अगर hot places हैं, पहले से ही hot places है, तो वहां पे जो magma cool होने की जो speed होगी वो very low होगी, और जैसे ही वो cold areas में magma अगर spread होता है तो वो जल्दी से क्या होगा? cool होगा. तो जो उनको कूलिंग होने की जो रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन है वो कैसी होगी. रैपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा results in small crystals. It occurs when lava spread on sea floor. sea floor के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या आ जाएगा कि ओशियन के अंदर जब लावा स्प्रेड होता है तो पानी होगा तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होंगे वेरी स्मॉल फॉर्मेशन में होंगे. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा. इट गिव्स लार्ज क्रिस्टल्स. इट ऑक्योर्स एज ग्रेटर डेप्थ. ये ज्यादा गहराई पर निकलते हैं. एक्सट्रीमली सडन कूलिंग. इट मींस अचानक से ही ठंडा हो जाना. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेचुरल ग्लास. इट इज नॉन क्रिस्टलिन. यानी कि इसमें नेचुरल ग्लास की फॉर्मेशन बनती है एंड इसमें क्रिस्टल्स नहीं होते. सेकेंड टाइप की जो हमारी रॉक्स है, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें. 3/4 of the earth's surface is covered with these rocks. They make up only about 5% of the volume of Earth's crust. Sedimentary rocks are not as important as igneous rocks in depth of the earth. अर्थ की गहराई के अकॉर्डिंग इनकी इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो igneous rocks are more important than sedimentary rocks. यानी कि sedimentary rocks important है लेकिन igneous rocks are more important. Next given है they are widespread in their extent. यानी कि वो काफी दूर-दूर मात्रा तक फैली हुई है. These rocks are formed from those materials which are deposited at favorable site by the agents of denudation. यानी कि अवसादन के अकॉर्डिंग जो भी इनके एजेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट किया जाता है मटेरियल, चाहे वो रिवर के अकॉर्डिंग हो, चाहे विंड के अकॉर्डिंग या सी वेव्स के अकॉर्डिंग, all these agents deposit the elements of rocks and the sedimentary rocks form. Next है the deposited material is known as sediment. जो भी मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट. And the rocks formed by such deposit is called sedimentary rocks. और जो सेडिमेंट्स होगा उसके डिपॉजिट होने के बाद लेयर्स में वो कंटिन्यू डिपॉजिट होता जाता है तो वो किसकी फॉर्मेशन बनेगी? उस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स. यहाँ पे गिवन है आपका कि इस तरीके से सेडिमेंट ने डिपॉजिट किया रिवर्स वगैरह ने. नेक्स्ट टाइम वो फ्लो करके अपने साथ और मटेरियल लेके आई, एक लेयर और हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम एक और लेयर होगी. इस तरीके से जो डिपॉजिट है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है. एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर the which type of rocks are formed, this is sedimentary rocks. So in the form of layers or in the form of strata. So these rocks are also known as stratified rocks. The other name of sedimentary rocks is stratified rocks. Now examples
of sedimentary rocks are sandstones and chalk, made from grains of sand which is consolidated, cemented and compacted into a rock chalk. It made of a millions of living calcium carbonate या lime skeletons of microorganisms. यानी कि इसमें किस चीज की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है, दिस इज कैल्शियम. कैल्शियम की किस तरीके से होगी, जो डेड बॉडीज की, जो एनिमल्स वगैरह की जो स्केलेटन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनके डिपॉजिट्स वगैरह. द लाइम शेल्स आर cemented into chalk and limestone of organic origin. Next, by the geological history of the earth, layers of sediment have accumulated to great thickness on continent and low on the sea floor. Okay, अब यहाँ पे गिवन है कि जो सेडिमेंट की जो फॉर्मेशन है, लेयर्स है, कॉन्टिनेंट पे क्या है, हाई. इट मींस वहां पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई, एंड ओशियन के अंदर क्या है, लो. व्हाई? क्योंकि जो हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग है, कॉन्टिनेंट्स आर ऑन ग्रेटर हाइट देन द, किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, हमारा सी फ्लोर के अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा हाइट है. दैट्स व्हाई देयर द कंसंट्रेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इज हाई एंड ऑन द सी फ्लोर दिस इज लो. यहाँ पे आपके एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि ओशियंस के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट्स वगैरह होता जाता है सी फ्लोर के अकॉर्डिंग, पेबल्स, सैंड, मड एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स. द रिवर डिपॉजिट दीज सेडिमेंट्स. इन सब का जो डिपॉजिट कौन करता है, रिवर्स करता है. किस तरीके से, रिवर्स इस तरीके से फ्लो करती है कि सबसे पहले जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनका डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, उसके बाद छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आगे आगे लेयर्स डिपॉजिट होती जाती है. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट गिवन है, द सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड लेयर आफ्टर लेयर. जो सेडिमेंट्स रॉक्स के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट होता जाता है वो किस फॉर्मेशन में होता है, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर्स की फॉर्मेशन में. सो ऑल लेयर्स एक्सपीरियंस प्रोग्रेसिवली डीपर बरीड वाटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेडिमेंट. इसमें से जब हीट और प्रेशर ज्यादा जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. दैट्स व्हाई they become denser and strongly coherent and hard rock layers are produced. तो इस तरीके से जो हीट एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग किस तरीके की जो लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, हार्ड रॉक्स की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है लिथिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सेडिमेंट इनटू हार्ड रॉक लेयर्स बाय प्रेशर. प्रेशर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन चेंज होती जाती है, जो सेडिमेंट है वो चेंज होता है किसमें, इनटू हार्ड रॉक में. तो वो किस हार्ड रॉक में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाएगा, लिथिफिकेशन. केमिकल चेंजेस आल्सो टेक प्लेस इन सम ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स. जो सेडिमेंटरी रॉक्स है उसमें केमिकल प्रोसेस भी होती रहती है. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज affecting sediments during its conversion into solid rock. This is called diagnosis. Okay, now we are going that classification of sedimentary rocks. यानी कि sedimentary rocks को किस किस पार्ट्स में आगे क्लासिफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट गिवन है clastic sedimentary rocks and non-clastic rocks. Clastic is derived from the Greek word. From which language this word is used? This is Greek word klastos. Its meaning is broken. इसका meaning क्या होता है? Broken, टूटना. It defines such sediments which consisting of particles removed individually from the parent rock. Parent rock से जो particles हैं अलग हो जाना, टूटना भी क्या कहलाता है? Clastic sediment. Its name depends in the past on the size of component mineral grains, okay, known as Wentworth scale, because a system
ग्राइंडिंग मिनरल्स ग्रेन्स एंड एस्टेब्लिश्ड। नॉन क्लासिक में हमारा क्या आ जाएगा, केमिकल पार्टिसिपेशंस। नेक्स्ट इज और ऑर्गेनिकली ड्राइव सेडिमेंट्स। ऑर्गेनिकली जो सेडिमेंट्स है वो ड्राइव किए जाते हैं। केमिकल प्रिसेप्शंस क्या होता है, सॉलिड मिनरल्स मैटर प्रिसेप्टेड फ्रॉम द occurrence solution in which components transported like rock salt and gypsum. Next यहाँ पे given है organically derived sediment. These consist of remains of plants and animals. Organic के अंदर क्या आ जाएगा, जो हमारे plants and animals के जो dead particles हैं and minerals matters produced by the activities of plants and animals. इसके examples क्या आएंगे हमारे coal and limestone. Okay students, next topic we are doing in our next class. Thank you.